warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aksamit from class 4 and I am studying at Green Hills Experimental School. My name is Amanda from class 4th and I am studying at Green Hills Experimental School. We warmly welcome you to our school podcast today. Sir, we would like to ask you some questions to know you better. Shall we start, sir? Sir, what inspired you to join politics? Thank you very much. First of all, Assalamu alaikum to everyone. First time in my political career, or since I started practicing law, I'm very much scared. Your question was that what inspired me to join politics. When I was in university a decade back, initially I wanted to join civil services. My main motive was to serve people. And during my university days, I met a friend who was actually a politician, and during the discussion, he inspired me because I wanted to serve people. And serving people through any field, whether you are in politics or you are a lawyer, you are a doctor, whatever you have to contribute to the society. At the end of the day, you have to see what you have contributed. So I joined politics, then I had to see which party I have to join. One must know the meaning of what is democracy, what is secularism, what is liberty. When people talk of liberty, they should know what they are talking about. So as far as the history of political parties is concerned, as far as personally my ideology is concerned, I was tilted towards Congress. I joined Congress in 2010. Started from student politics, then youth politics. Now I'm in the parent body of Congress. So my main motive and the things which inspire me is to only serve my people. Politics is the politics of people. Politics should be done for the people. You should contribute towards society. It's not important that you only become a successful man or a successful woman. You should be a good human being as well. इंसान बनना बहुत जरूरी है, एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है. So, the main motive, the inspiration which inspired me to join politics is for my people, to serve people, because people need politics and politicians need people. Thank you. Nice to know, sir. How important is honesty in life and politics? Honesty, we say that charity begins at home. Have you heard this? Charity begins at home. But unfortunately, it ends at home only. When you, my dear children, when you eat chocolate, इस रैपर को कहाँ फेंकते हो आप? कहाँ फेंकते हो? बट ये घर में होता है. We eat chocolate, हम चिप्स खाते हैं. तो इस रैपर को कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन. बट द सेम चॉकलेट, वही आइसक्रीम अगर हम बाहर खाते हैं तो इस रैपर को कहाँ फेंकते हैं? क्या डस्टबिन में फेंकते हैं? डू वी लुक फॉर डस्टबिन? हम ढूंढते हैं डस्टबिन का? नो, हम इसको रोड पे फेंक देते हैं. सो चैरिटी बिगिंस एट होम, लेकिन इट एंड्स एट होम. ये घर से बाहर नहीं निकलता.
ऑनेस्टी इन लाइफ, ऑनेस्टी इन पॉलिटिक्स, ऑनेस्टी इन प्रोफेशन, ऑनेस्टी की दरकार, जरूरत, नीड हर जगह है। लेकिन ऑनेस्टी किस तरीके की ऑनेस्टी? यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑडियंस। ऐसे खूबसूरत मासूम बच्चों के सामने पहली बार मैं बात कर रहा हूँ। ऑनेस्टी को समझने की जरूरत है। ऑनेस्टी किस ऑनेस्टी को आप कहते हैं? एज एक ऑफिसर को समझते हैं। ऑफिसर कहाँ होता है? ऑफिस में बैठा होता है, ऑफिस में बैठा होता है। तो कोई शख्स जो है, कोई गरीब शख्स इस ऑफिसर के पास चला जाता है, ही डजंट टेक मनी, वो ब्राइब नहीं देता है। इज ही ऑनेस्ट? सवाल पूछ रहा हूं बच्चों। एक ऑफिसर रिश्वत या पैसे नहीं लेता है काम करने के, क्या वो ऑनेस्ट है? ऑनेस्ट है? नहीं है? फिर क्या है? वो ऑनेस्ट है, लेकिन ऑनेस्टी समझने की जरूरत यह है कि अगर वो काम नहीं कर रहा है और पैसे भी नहीं ले रहा है तो वो ऑनेस्ट नहीं है। ऑनेस्टी को समझने की जरूरत है, ऑनेस्टी को डिफाइन करने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को ऑनेस्टी क्या है ये बताने की जरूरत है। कितने बच्चे यहाँ पर हैं जो सिर्फ टिफिन के लिए स्कूल आते हैं? कितने बच्चे? हाँ? तो लाइफ में एंटरटेनमेंट जरूरी है, लाइफ में पढ़ाई भी जरूरी है, लाइफ में ये फोन भी जरूरी है, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो, अपनी पढ़ाई के साथ ऑनेस्ट रहो, तो सब ठीक चलेगा। ऑनेस्टी हर जगह जरूरत है, चाहे आप एज ए स्टूडेंट हो, एज ए सन हो, एज ए डॉटर हो, एज ए प्रोफेशनल हो, जहां पर भी आप हो, ऑनेस्टी वहां पर जरूरी है। थैंक यू। Well, good to learn, sir. Sir, what was your dream when you were a child? What was my? What was your dream when you were a child? See, dreams change. We were so much eager to grow up. We were so much eager to grow up. But now I understand that वो जो टूटी हड्डियां हैं, यू फॉल, यू प्ले, वो गिरना, वो इंजरी होना, दोज वर द बेटर डेज। हम इसी फिराक में रहते हैं, हम छोटे, हम बड़े हो जाएं, लेकिन जिसमें आप हो, जिस वक्त में आप हो, जिस पल में आप हो, लिव दिस, इस वक्त को जियो। डोंट बी इन अ रश, डोंट बी सो ईगर। आगे बढ़ने के फिराक में, आगे बढ़ने की दौड़ में कहीं आपका आज जो आज है ये कहीं चला ना जाए। ड्रीम्स हर वक्त जो है, हमारा ड्रीम ये होता है कि एक छोटा बच्चा होता है, उसका ड्रीम होता है, ये भी उसको वो ड्रीम की तरह उसको देखता है कि मैं भी एक बार इतना बड़ा हो जाऊं, मैं गाड़ी की चाबी उठाऊं, गाड़ी को स्टार्ट करूं और निकल जाऊं कहीं पर। ऐसा भी होता है, बच्चे सोचते हैं, जिसके पास साइकिल है वो बोलता है काश मेरे पास गाड़ी होती, फिर मैं गाड़ी में कहीं चला जाता। किसी का ड्रीम है कि मैं डॉक्टर बनूं, 2 साल के बाद वो कहता है मैं इंजीनियर बनूं, 7th में वो कहता है मैं IAS बनूं, 10th में वो कहता है मैं मिनिस्टर बनूं। ड्रीम्स चेंज। मेरे तो यही ड्रीम है, कहूंगा कि वो वर सो मच ईगर टू ग्रो अप। लेकिन जब आज हम अपने स्कूल की तरफ देखते हैं तो तरसते हैं, काश उस कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर आप आज बैठे हो, बस 10 मिनट हम भी बैठ जाते हैं। 10 मिनट एज ए स्टूडेंट हम भी उस जो हम वो बचपन था उसको फील करते। ड्रीम्स जो है उसको, मैंने क्या सपना देखा था, हम कहां से कहां पहुंच गए। ड्रीम्स जो शख्स जो सपने हैं वो आप खुली आंखों से देखो, खुली आंखों से सपने देखो। ड्रीम्स तो सब देखते हैं, लेकिन फिर उस पर मेहनत करनी है। जब आप खुली आंखों से सपना देखना, मेरा मतलब है कि आप मेहनत करो। मेहनत जो है, मेहनत का मुताबादिल, मेहनत का रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं। मेहनत करोगे, कोई डॉक्टर बनना चाहता है जरूर बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। कोई IAS बनना चाहता है जरूर बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है। आप क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर कब बनोगे आप IAS ऑफिसर? उसके लिए आप आज क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो।
पढ़ाई भी करो, स्पोर्ट्स भी जो है उसके साथ भी कनेक्ट रहो। वक्त आएगा, आपने सपना देखा है, इस सपने की तामीर जो है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो आज से ही बनेगी। आप देख रहे हैं बच्चे इस चीज में फंसे हुए हैं, इस चीज में, इससे बाहर आने की जरूरत है, इस चीज से बाहर आने की जरूरत है। हमारे वक्त में ये नहीं था तो हम बच गए, बदकिस्मती है कि आपके वक्त में ये आ गया, ठीक है। तो आप मेहनत करें और इंशाल्लाह जो है सपने वही सपने हैं जिसके लिए जब मेहनत होगी तो सपने भी साकार हो जाते हैं। शुक्रिया। What advice would you give to children for a bright future? My advice to your children is live your present. पढ़ाई, मार्क्स कम होंगे, इससे आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। कौन किस बेंच पे बैठा है, इससे आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। मेहनत करें, सपने देखें, लेकिन उनको साकार करने के लिए मेहनत जरूरी है। सक्सेस एंड एक्सक्यूज कैन नॉट गो टुगेदर, दे कैन नॉट वॉक टुगेदर। ईदर यू सक्सीड और यू गिव एक्सक्यूज। तो जब कामयाब होना है तो बहाना नहीं है, आपको मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत भी आप जिस मेहनत को समझते हैं, आपको इस मेहनत से डरो मत, मेहनत से डरो मत। ये ऐसी मेहनत नहीं कि आप स्कूल में हैं, आपको बुक्स पढ़नी है, सिर्फ बुक्स ही पढ़नी है। ऐसा कभी होता है जब आप अपना होमवर्क करते हो, आप पेंसिल को शॉर्प करने में ही लग जाते हो, इतना शॉर्प करते हो कि होमवर्क आपको नींद पड़ जाती है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। रबर को खाने लगते हो, ऐसा होता है। रबर खाते हो, नहीं खाते हो। तो ये चीजें जो है, माई एडवाइस टू यू इज वर्क हार्ड, गो फॉर एक्सेलेंस, सक्सेस विल फॉलो। डोंट चेज सक्सेस, सक्सेस के पीछे मत दौड़ो, एक्सेलेंस के पीछे मत दौड़ो। जैसे अभी ये बच्चे जो बात कर रहे थे, सबाहत, क्या नाम, सबाहत है, आई हर्ड यू अर्लियर आल्सो। आप पहली बार एक ऐसा पॉडकास्ट जो मेरे सामने चल रहा है, यू पीपल हैव टैलेंट, आप में टैलेंट है, आप में टैलेंट है, आप में कुव्वत है, आप में वो जो है एक, आई कैन सी दैट, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खुर्शीद साहब। तो ऐसा मेरे सामने जो बच्चे हैं, और मुझे तो लग रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसी कमरे से मुझे लगता है कि बड़े बड़े सियासतदान, बड़े लीडर, बड़े डॉक्टर, बड़े IAS ऑफिसर्स, आप क्या करना चाहते हैं? आप बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइप में, रादर एंटरप्रेन्योर यहाँ से निकलेंगे। एंड आई विश यू लक, आई विश यू गुड लक। आई होप कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जिले बारामूला का ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर का नाम हो सकता Sir, please tell us, why is education is important for every child? Education, you have first, my dear children, you have to differentiate between education and literacy. लिटरेसी को क्या कहते हैं? पढ़ा लिखा है। एजुकेशन क्या होता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी? एजुकेशन जो है वो सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है, उसको समझना है, उसको समझना है। फेलियर्स, लाइफ में फेलियर्स होते हैं, लाइफ में फेलियर्स होते हैं, बहुत ऐसे हैं। हैव यू हर्ड अबाउट इलॉन मस्क? इलॉन मस्क का नाम सुना है? बहुत आगे, बहुत बड़ा कहेंगे बिजनेसमैन है, जब आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, आई बिलीव, इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। एजुकेशन सिर्फ किताबों में आपको नहीं मिलेगी। When I was talking to your chairman साहब, he told me a wonderful thing. उन्होंने कहा कि यहाँ पे IQ पर काम किया जाता है, बच्चों की IQ पर। To educate is not to only literate a person. एजुकेशन की जरूरत आपको हर मरहले में, हर फील्ड में, हर शोबे में आपको इस एजुकेशन की जरूरत है, लेकिन उस एजुकेशन को आपने समझना चाहिए। When you, आप मॉरल स्टडीज पढ़ते हैं, मॉरल साइंस आपका है कोई सब्जेक्ट आज तक? जब उस मॉरल साइंस को हम पढ़ते हैं, क्या उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं? जब उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे अपनी जाती इन और पर्सनल लाइफ, तो हम एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं खुद को। जब हम खुद एजुकेट हो जाएंगे तब हम आगे किसी को एजुकेट कर सकते हैं। सो एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, और इस लाइफ को आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है,
आप अपनी लाइफ में जो कंट्रैक्टर है, अपने करियर के, अपने मुस्तकबिल के कंट्रैक्टर आप खुद हैं, आर्किटेक्ट आप खुद हैं, आर्टिस्ट आप खुद हैं। अब नीड है कि आपको इसको समझने की जरूरत है, एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। बच्चों में आप देखते हैं कि एक दिन झगड़ा होता है, दूसरे दिन फिर से साथ होते हैं, ऐसा ही होता है। आप जितने बड़े होते जाएंगे आप देखेंगे कि जो बाहर की जिंदगी है वो कुछ और ही है। बाहर की जितना हमने पढ़ा है उसका जो असल में जो उसका अमली तौर पर हम देखते हैं दुनिया में नहीं दिखता है। तो आप यू आर द रे ऑफ होप फॉर अस। आप भी इस दुनिया को बदल सकते हैं, इसी माशरे को बदल सकते हैं। सिर्फ ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनना ये कामयाबी नहीं है। एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। इखलाकी तौर पे हर मामले में आपको एक बेहतर इंसान बनना है। और मैं फिर से कहूंगा, डोंट चेज सक्सेस। अगर आप सूरज की तरफ अपनी पीठ करेंगे, ठीक है, तो आपका जो शेडो है वो कहां पड़ेगा? पीछे की आगे पड़ेगा? आगे पड़ेगा। तो आप जितना तेज भागोगे, शेडो आपसे दूर भागेगी कि आपके पीछे रहेगी, या आपसे दूर भागती जाएगी। बट इफ यू फेस द सन, शेडो विल फॉल बिहाइंड। आप जहां जाओगे ये शेडो आपके पीछे पीछे होगी। सो डोंट चेज सक्सेस। अगेन आई एम रिलेटेडिंग दिस बैक, डोंट चेज सक्सेस, गो फॉर एक्सीलेंस। खुद को काबिल बनाओ। मार्क्स आने से, कम आने से, ज्यादा आने से कोई काबिलियत का उससे कोई डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किसी के मार्क्स कम आए, किसी के ज्यादा आए। ऐसा भी होता है कि जो टॉपर्स निकले स्कूल से, तो आने वाले वक्त में देखते हैं कि जो पीछे वाला लास्ट बेंचर होता है वो बड़ा अफसर बनता है, बड़ा बिजनेसमैन बनता है। ये टॉपर नहीं कर पाता है क्योंकि शॉर्टकट लाइफ में नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो आई विश यू गुड लक, बोथ ऑफ यू। थैंक यू। Asking myself, if you were a school student again for one day, what would you do first? If you were a school student again for one day, what would you do first? I'll not go back home, I'll sleep in the school. Because I miss my school days. I'm telling you, I miss that time when there was no tension, when there was no pension, and we had no tension of salaries, or we have to buy anything for our home. Everything was ready. My uniform was ready. My tiffin box was ready. The only thing I had to do is to go to school and study. And that time, sitting on those small chairs and those small benches, I miss that time. I always want to add times. In fact, I had this discussion with my friends as well, those who were my classmates, that one day we'll decide about a day. एक दिन ऐसा decide करेंगे कि सारे जो बैचमेट हैं will go to school and sit on those small chairs, and again we'll recollect those memories. So I don't want to go back home. I would stay in the school only. We are enjoying, sir. मुझे एक्चुअली इसके एक्सप्रेशन उसके बाद समझ आता है। What do you know most about Baramulla? About Baramulla, the best thing in Baramulla is Baramulla itself. I was born here, born and brought up here. This is a wonderful place. We are living in the mountainous kind of region. And overall, not because I am from Baramulla, the people of Baramulla, in most of the aspects, we are best in Jammu and Kashmir. Particularly in Kashmir, the people of Baramulla, their manners, the way we call in Urdu, the tehzeeb, you will not find that in any of the districts. And it was known as the gateway of Kashmir. Do you know about it? Before partition, it was known as the gateway of Kashmir. You know why gateway of Kashmir? Children, do you know why? Do you know why? Because towards this Uri, we have a border now. In those days, before pre-1947, there was no border. We had connected with the Pakistan. That time it was not Pakistan, it was Kashmir only. We could connect with, trade with Middle East as well, that's Iran and Iraq and Middle East. So it was known as the gateway of Kashmir. So the best thing about Baramulla is the people of Baramulla, and most importantly, beautiful and innocent children like them. Thank you.
know, sir. What game did you love to play in your childhood? I used to play cricket. I have played 2 nationals in cricket, and that's the only game I have played in my childhood. Thank you. How can children make society better? Children can make society better by becoming a better human being. You have to become a better human being morally. If you are morally correct, so you are actually a good human being. So becoming a good human being, these human values, the moral values should be taught in the schools to the children. So, because you are our future. You are our future. जो आप सीखेंगे वही जो आने वाले दौर में है, हमारा दौर जो है हमारी जो सोसाइटी में, तो सोसाइटी वैसी ही होगी जैसा जो आज जो आपको तालीम दी जाएगी, आपको जो आज तरबियत दी जाएगी, आपको आज important, you should respect your teachers, respect your parents. We are somehow degrading and going down in that way. So मैं अगर कभी अपने टीचर को देखता हूँ, अपने उस्ताद को देखता हूँ, और मैं गाड़ी में हूँ और वो पैदल चल रहे हैं, मैं कभी उनको सलाम जो है गाड़ी में बैठ के नहीं करता. I stop my car, I come down, then I go, I lower my shoulders. उसके बाद मैं सलाम करता हूँ और तब भी हिचकिचाता हूँ कि किस तरीके से करूँ. तो आप अपने एल्डर्स को, आप अपने पेरेंट्स को, एल्डर्स को, टीचर्स को उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा जो ओहदा है वो एक उस्ताद का है, टीचर का है. Am I right? तो एक टीचर जो है, एक लफ्ज अगर आपने किसी के पास पढ़ा हो, लेट मी टेल यू एन एग्जांपल आपको बताऊं. मैंने एक क्लास पढ़ी थी और मैं उस क्लास में पढ़ता नहीं था, वन ऑफ माय फ्रेंड वाज स्टडीइंग देयर, तो मुझे साथ ले गया, वो क्लास मैंने पढ़ी. तो आफ्टर दैट ही क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज. खुर्शीद साहब जानते होंगे, उनका नाम है शबीर अहमद खान. ही इज एसपी श्रीनगर. ही इज फ्रॉम आवर डिस्ट्रिक्ट बारामूला. एक क्लास मैंने उनके पास पढ़ी है, लेकिन अभी मैं जुर्रत नहीं करता उनके सामने खड़े होने की. तो आप बच्चों के लिए ये है कि सोसाइटी के लिए आप तब कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जब आप अच्छे इंसान बनेंगे, आप में वो वैल्यूज होंगे, आप में वो मॉरल वैल्यूज और एथिक्स होंगे, देन यू कैन बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग. थैंक यू. Sir, can you share one funny childhood memory with us? It's very hard to recollect one child. कौन सी funny moment होगी या there was one I couldn't recollect, but एक है that I was studying in St. Joseph. I was in 6th class and we had to go for picnic. तो हम पिकनिक चले गए. उन दिनों आपको शायद वो पता नहीं होगा, हमारी जनरेशन को पता है. उन दिनों जो जैसे आप आज के जो फोन है, यू कैन टेक एंडलेस फोटोज, है ना. कोई रील नहीं है. पहले कैमरा में रील होती थी, पता है आपको, उसमें सिर्फ 36 फोटोग्राफ्स उठते थे. तो वी वेंट टू पिकनिक और उसमें 30 ही फोटोग्राफ उठे 6 बजे. तो नेक्स्ट मॉर्निंग माय टीचर टोल्ड मी कि आप वो कैमरा ले आना स्कूल, तो स्कूल में वो 6-7 जो फोटो बचे हैं वो उठा देना. सो आई वेंट विद द कैमरा. तो प्रिंसिपल कॉट मी, बोले ये क्या साथ है? मैंने कहा कैमरा. बोला इसमें क्या करना है? मैंने कहा फोटो उठाना. वो मुझे उठा के और कैमरा को भी उठाकर उसने मुझे बंद कर दिया कि स्कूल में कैमरा अलाउड नहीं है. एनीवेज देयर आर लॉट है कि, लेकिन अब 20-25 साल पीछे जाना है और उस चीज को रिकलेक्ट करना, इट्स वेरी हार्ड. थैंक यू. What should children do to their parents proud? What should children do to make their parents proud? देखिए, एज ए पेरेंट मैं पहले कहूँगा, व्हाट इज योर गुड नेम? बच्चा अक्सा. और आपका नाम? अमानुल्लाह खान. अपीज़ा. एक फादर, when a father is walking,
आपके पापा, इमेजिन करो आपके पापा बाहर चल रहे हैं और कोई उनके पास आ गया और उसने कहा अमानुल्लाह खान के वालिद साहब चल रहे हैं, पापा चल रहे हैं, तो किसी ने कहा देखो अमानुल्लाह के पापा जा रहे हैं। ये बात आप समझे? कोई क्यों कहेगा कि अमानुल्लाह के पापा जा रहे हैं? कब कहेगा? समझे कि नहीं समझे? जब आप लाइफ में कुछ ऐसा करोगे कि आपके पापा को अमानुल्लाह के नाम से पहचाना जाएगा, उनको तकलीफ होगी कि उनके नाम से नहीं, कि उनके बेटे के नाम से पुकारा गया। नो, उनको तकलीफ नहीं होगी, विल फील प्राउड। बच्चों कभी ऐसा काम नहीं करना, कभी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके वालिदैन को, आपके असातिज़ा, उस्ताद जो है खुदा ना खास्ता शर्मिंदगी का जो है सामना करना पड़े। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े अफसर बनो, जरूरी नहीं। एक आप अच्छे इंसान बनोगे तो अल्लाह ताला आपको अच्छे ओहदों से भी नवाजेगा। मेहनत करें, उस वक्त को सोचें कि जब आपके पेरेंट्स को आपके नाम से पुकारा जाएगा, तब आपके वालिदैन जो है एक चीज मैं कहूंगा कि मुख्तसर में कोई चीज कहूंगा कि आप क्या करें कि आपके वालिदैन, आप जो उनको फख्र आप पर होगा, प्राउड होगा। मैं ये कहूंगा कि आप मेहनत करेंगे, आप मेहनत करेंगे, जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर इंशाल्लाह मिलेगा। और आपके उस्ताद जो है, आपके वालिदैन जो, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। Would you say one motivational line for all students watching this podcast? I think I have spoken a lot. What line can I give you? बस वो मैं मैडम ने सुना होगा, मैं फिर से आपको बोलता हूँ। वो लाइन में शायरी में ही आपको बताऊंगा। आप बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको रिपीट करूंगा कि तुम अगर चाहो तो हालात बदल सकते हैं, तुम अगर चाहो तो हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। तुमने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, नरम लहजे से पत्थर भी पिघल सकते हैं। और तुम तो ठहरे हो जैसे झील के पानी की तरह। झील का पानी जो होता है ना, रुका हुआ होता है ना, रुका हुआ, वो अक्सर गंदा हो जाता है। आपको झील का पानी नहीं बनना है, तुम तो ठहरे हो जैसे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर तक निकल सकते हो। फिर से एक लाइन में इसमें और ऐड करूंगा, एक छोटी सी शायरी आज में और ऐड करूंगा। कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो बीज होता है वो पहले कहाँ मिलता है? जमीन में मिलता है ना, फिर उसमें जो है पौधा निकलता है, पौधा निकलता है। तो पहले आप मेहनत करें, मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। गरीब के घर से, अमीर के घर से इस चीज के ध्यान, ये जहन में चीजें नहीं ले आओ कि कौन अमीर है कौन गरीब है। आप सब बच्चे, सब है ना, सबको एक यूनिफॉर्म लगी है, सबको एक यूनिफॉर्म लगी है। तो खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को इंस्पायर करने के लिए जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आपकी ही होगी। जो बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी होगी? जो आप खुद बनाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। कॉपी करने की जरूरत नहीं है। कोशिशें जो हैं कामयाब तब होती हैं जब उसमें जो है मेहनत का, और आजकल के दौर में सिर्फ मेहनत नहीं, आजकल के दौर में सिर्फ मेहनत नहीं, इस जहन की धार को तेज करो। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वर्क करने की बहुत जरूरत है। कोई खेलना चाहता है, कोई क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, मेहनत करो। कल को आईपीएल भी खेल सकता है, इंडियन टीम में भी खेल सकता है। कोई साइकिलिस्ट है, किसी को फोटोग्राफी पसंद है, उसमें आगे बढ़ना चाहता है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कोशिश करूंगा खुर्शीद साहब के साथ मिलकर कोशिश करूंगा मैं इस स्कूल के लिए कुछ अपनी तरफ से मैं कुछ इसके लिए कुछ कर पाऊँ। Thank you so much, sir, for giving your valuable time at our podcast today. We learned many inspiring things, words from today. It was truly a great experience for all the students. We hope you feel us as much as we enjoy talking with you. On behalf of all students and staff, thank you once again, and we wish you good health, happiness, success, and